Hello young physics learner, today I am going to start a new unit, that is motion in a straight line. Before that I have completed some topic that are based on mathematical relations. Many more things are there in kinematics and I will take it one by one. So here motion in a straight line is basically related with the terms, that physical terms as well as graph and relative motions. So we will discuss all these three sections under this unit, motion in a straight line. So let us start. First of all, the different physical terms that indicates the motion of a body. Clear? Basically you know that state of motion and state of rest, ये सब आप पढ़ चुके हो पहले की क्लासेस में. You know that state of motion and state of rest can be explained with the help of frame of reference. So first of all, FOR, we will discuss this term. What is frame of reference? Remember this, in this lecture we will discuss various graphs that are very much important and the relative motion which is based on this frame of reference. So it will be better for you to take one note copy and write down the important part of this lecture so that you may relate these terms afterward when I will discuss the new topic based on this previous topic. So first of all, let's start with the frame of reference. It is in deep detail in further classes. Okay, it will come in graduation that you will learn about different frame of reference. There are inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. So basically what is frame of reference and why it is required, that is the main thing we are going to discuss here. You know that anything in the universe is in the state of motion. Actually at this point I am in the state of rest with respect to you. Clear? But still I am moving because earth is rotating. So that is why I am in the moving stage. So that depends on the observer and the object. So there are two things. One is observer and second is object. Got it? OO. We can relate this frame of reference on the basis of OO. Observer and object. Okay? कहीं भी आप चले जाओ, एक ऑब्जर्वर होता है और एक जिस पॉइंट को, जिस बॉडी को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. गॉट इट? अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की सिचुएशन क्या है, उस बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट को बताते हैं वेदर इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन. अदरवाइज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन. दो टाइप की बॉडीज होती हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडी एंड सेलेस्टियल बॉडी. सो टेरेस्ट्रियल बॉडीज वो बॉडीज हैं जो अर्थ सरफेस पर रहती हैं. अर्थली बॉडीज, दीज बॉडीज आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल बॉडीज. And celestial bodies, the other bodies or objects which are present in space like meteorites, asteroids, planets, sun, stars, moon, all these are the celestial bodies. So we can differentiate any object in the two forms, one is terrestrial and one is celestial. Clear? Now these terrestrial as well as celestial bodies are always in the state of motion because actually the whole universe is moving. ये एक, अगर हम इस स्ट्रक्चर को यूनिवर्स एज्यूम कर रहे हैं तो ये यूनिवर्स भी बिग बैंग थ्योरी एक है. बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में ये हाइपोथेसिस दी गई है, दिस इज़ द वन थ्योरी दैट दिस यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग. क्लियर? ये एक्सपेंड कर रहा है तो इसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक स्टार्स, प्लैनेट, मीटियोराइट, एस्टेरॉइड. ये एक स्टार है, ये कोई प्लैनेट है, मीटियोराइट, एस्टेरॉइड्स. So all these bodies are also in the state of motion
every galaxy is in the state of motion, so everything in this universe. ये कैसे हो रहा होगा, आप सिंपल सा एक केस ले सकते हो कि अगर आप एक जेली लाइक, ये जो यूनिवर्स है आपको पता है ये इट इज़ अ प्लाज्मा इन नेचर, सो ये अगर आप एक जेली लाइक स्ट्रक्चर एज्यूम करो, उसके अंदर बीड्स डाल दो, छोटी छोटी सी बॉल्स डाल दो, तो क्या होगा, अगर वो जेली एक्सपेंड करेगी तो वो बॉल्स के बीच में गैप भी एक्सपेंड कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, कम हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, दैट इज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर आप उस जेली को स्टिल कर दो तब भी उस जेली के अंदर वो बॉडीज़ मूविंग स्टेज में आएंगी। क्लियर? सो दैट मीन्स व्हाट, कि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और सेलेस्टियल बॉडीज़ के बेसिस पर जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ है, टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थली बॉडीज़, तो क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ भी मूव कर रही हैं। क्लियर? टेरेस्ट्रियल बॉडीज़, अगर हम किसी और प्लैनेट की बात करें, अगर वहाँ लाइफ है तो वहाँ की बॉडीज़ उस प्लैनेट के लिए टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं। गॉट इट? सो दैट इज़ वाई ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, I describe these two terms, observer and object. Each and every object in this universe is in the state of motion. So how can we define the state of rest? It is the most important thing कि rest में तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, but actual में अगर हमें किसी भी बॉडी की स्पीड, एक्चुअल स्पीड को फाइंड आउट करता है तो हमें उस केस में बॉडी के लिए FOR यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? दिस FOR, इसको आप नोट डाउन कर लो, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? सो किसी भी बॉडी के मोशन स्टेट और रेस्ट स्टेट को बताने के लिए ऑब्जर्वर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना बहुत रिक्वायर्ड है। जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको, उसकी साउंड को लिसन, उसको सुन रहा है, तो वो सारे के सारे टर्म्स किससे रिलेटेड हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। क्लियर? तो इसलिए इस मोशन और रेस्ट को समझने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? FOR, frame of reference. So frame of reference is basically a plane. इसको आप 2 डायमेंशनल प्लेन ले सकते हो, 3 डायमेंशनल प्लेन ले सकते हो। ठीक है? X, Y, Z, ये 3 डायमेंशनल प्लेन हो गया। अगर आप सिंपली X और Y लेते हो तो वो 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया। इफ़ यू आर टेकिंग ओनली X देन 1 डायमेंशनल। ये जो चैप्टर दिया हुआ है दैट इज़ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है इन 1 डायमेंशन, या तो x एक्सिस में या y एक्सिस में या z एक्सिस में। सो ओनली 1 डायमेंशनल। सो हियर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 1 डायमेंशनल टर्म्स। Okay, we will describe the term on the basis of only 1 dimension. So here first of all you have to understand FOR. जो observer होता है वो इस फ्रेम के origin point पर situated होता है। Position of observer. Clear? This one is the position of observer and the object OO I told. The object is situated either in this frame, in the same frame, or it may be situated in another frame. This is second frame, Y, X, and this one is Z. So this one is frame 1 and this one is frame 2. Got it? Frame 1 and frame 2. So frame of reference क्या है? जहाँ पर जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर सिचुएटेड है उस फ्रेम को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दिस फ्रेम, फ्रेम 1 इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है उसको कहते हैं, ये आप लोग रिमेंबर दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो बी फोकस्ड ओवर हियर, क्योंकि ये पॉइंट आपका इस +1 के टॉपिक का जो लास्ट चैप्टर है जिसमें आप डॉपलर इफेक्ट भी पढ़ोगे वहाँ पर बहुत काम आने वाला है। ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो ऑब्जर्वर पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है, एवरीथिंग दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ ही साथ आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन में कई बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है? तो उसके लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है वो पता होना चाहिए।
Clear? So यहाँ पर frame of reference is the plane where the observer is situated. That is called frame of reference. Clear? Now the object may be situated. This O is object. The object may be situated in the same frame of reference or in the other frame of reference. Clear? यहाँ पर फ्रेम नंबर 2 को फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, इसको हम सिर्फ फ्रेम नंबर 2 कहेंगे. इट इज़ नॉट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इस फ्रेम में ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम, इज द प्लेन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, वेयर द ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड. दिस ऑब्जर्वर, दिस कैपिटल O इज द पोजिशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर? तो ऑब्जर्वर जिस भी प्लेन में होगा उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है. अब ये हम लोग जो साइंटिफिकली टर्म्स में बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इफ़ यू आर सिचुएटेड ऑन अर्थ, सो इफ़ यू आर ऑब्जर्वर एंड यू आर ऑब्जर्विंग द पोजिशन ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट की पोजीशन को देख रहे हो, तो वो प्लैनेट क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, टेलीस्कोप से देख रहे हो सपोज. ठीक है? तो वो जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, जहाँ पर जिस प्लैनेट को आपको देखना है, दैट प्लैनेट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड यू आर सिचुएटेड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो आप अर्थ पे सिचुएटेड हो, इसलिए अर्थ बिकम a frame of reference because you are observing. So we can define that frame of reference is the frame where the observer is situated. Remember this point. अब आप यहाँ पे ये देख लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब ये है कि अगर आप अर्थ पे सिचुएटेड हो और अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को, तो अर्थ तो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है. अर्थ इज़ रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड about its own axis as well as it is revolving around the sun. ये बेसिक सिचुएशन आपको पता है. सो दैट मीन्स व्हाट, कि अर्थ मूव कर रही है, इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूवेबल है. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूवेबल है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आप उसकी एग्जैक्ट मोशन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. आप जब नेक्स्ट प्लैनेट को देख रहे होगे, किसी भी प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे होगे और आप खुद मोशन में हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्लैनेट मूव भी कर रहा है, कि वो स्टेबल है? यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट. क्लियर? सो दैट इज़ वाई वी सपोज दैट थिंग, if we are situated over the earth and we are observing anything, then earth is stationary for us. Got it? तो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम स्टेबल या स्टेट ऑफ रेस्ट में एज्यूम करेंगे. वी विल कंसीडर दिस टर्म. रिमेंबर दिस, एज्यूम वर्ड इज हाईलाइटेड वर्ड. क्लियर? सो दिस वन इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच वी विल एज्यूम एज द zero velocity frame and it is in the state of rest. Actually it is not in the state of rest. इसीलिए आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी. हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो किसी के रिस्पेक्ट में एज्यूम कर रहे हैं. अर्थ मूव कर रही है लेकिन हम अर्थ पे सिचुएटेड हैं, तो हमारे लिए अर्थ स्टेशनरी है. ठीक है? अर्थ हमें मूव करती हुई दिखाई नहीं देती, इसलिए हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो क्या है, स्टेशनरी है, स्टेबल है, स्टेट ऑफ रेस्ट में. सो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो फ्रेम रेस्ट में है, अर्थ रेस्ट में है. हमें नहीं पता चलता कि अर्थ मूव कर रही है. जब हम अर्थ से बाहर निकलेंगे तब हमें पता चलेगा अर्थ मूव कर रही है, अदरवाइज वी कांट आइडेंटिफाई दैट अर्थ इज़ मूविंग. गॉट इट? सो दिस ऑब्जर्वर फ्रेम इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही सिचुएटेड है, सपोज़ हम अर्थ पे खड़े हैं, ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ इसका. अगर अर्थ पे खड़े हैं और हम मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसका, एक मूविंग व्हीकल का, एक कार जा रही है उसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, ये कार है, ये कार मूव कर रही है वी वेलोसिटी से. ये बाइक पर्सन है, ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से. तो यहाँ हम ओरिजिन पे खड़े होकर के देख सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर की, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी. वी आर ऑब्जर्वर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो हियर दिस वन इज ऑब्जर्वर, मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ. सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम स्पीड. वी कैन आइडेंटिफाई द स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेफरेंस फ्रेम. क्लियर? एंड
इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेशनरी स्टेट, यानी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, बाइक खड़ी है, कोई कार खड़ी हुई है, सो दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को हम किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। अब इसकी डिफरेंट सिचुएशन देख लो। ये दूसरा फ्रेम है, यानी हम अर्थ पे खड़े हैं, दिस वन इज़ द रेफरेंस फ्रेम, और ये जो दूसरा फ्रेम है ये कोई प्लैनेट है, और उस प्लैनेट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उस प्लैनेट को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है वो उस फ्रेम में नहीं है जहाँ पर ऑब्जर्वर था, वो किस फ्रेम में है? डिफरेंट फ्रेम में। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि इस फ्रेम की स्पीड क्या है, क्या ये फ्रेम मूव कर रहा है कि ये फ्रेम रेस्ट में है, यानी ये प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे ये ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, ये प्लैनेट मूव कर रहा है कि ये प्लैनेट रेस्ट में है। सो वी कैन आइडेंटिफाई द स्पीड ऑफ दिस फ्रेम, VF, स्पीड ऑफ फ्रेम। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वर इस फ्रेम की स्पीड को बता सकता है, क्लियर, यानी इस प्लैनेट की स्पीड को बता सकता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, अगर इसी फ्रेम में ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड में, तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इस फ्रेम की स्पीड के रिलेटिव मोशन में कंसीडर की जाएगी। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, वो ऑब्जर्वर पहले चेक करेगा कि अगर फ्रेम मूवेबल है तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड किस तरीके से निकलेगी, विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ दिस फ्रेम। सो we can consider that whether the object is moving with respect to frame 2 or whether the object is situated at rest with respect to frame 2. Got it? तो इसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट की मोशन स्टेट या रेस्ट स्टेट को बताने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्जर्वर की, और ऑब्जर्वर के फ्रेम को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे आप पढ़ोगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन आई विल गेट फ्री टाइम out of this syllabus +1 and +2 syllabus, then I can discuss these terms which are some extra terms, some advanced terms related to physics, okay, theoretical physics here. So I hope that frame of reference is clear and state of rest and state of motion is clear. State of rest और motion हमेशा observer के reference में ही बताई जाएगी, frame of reference के respect में ही बताई जाएगी कि वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि स्टेट ऑफ मोशन में है। ओके, सो दिस पॉइंट, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। अदरवाइज़ क्या होता है कि इसका एक रिवर्स एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप किसी कार में मूव कर रहे हो विथ सम स्पीड, लेट इट बी 40 km/h, गॉट इट, और एक दूसरा पर्सन है जो दूसरी कार में मूव कर रहा है, लेट इट्स स्पीड इज़ 20 km/h, वेरी स्लो स्पीड. So for you can't identify the exact speed of second car because you are in the state of motion on the same frame. ठीक है, आप खुद मूव कर रहे हो तो आप दूसरे की मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं बता सकते हो. सो दैट्स हैपन्स इन द केस ऑफ ट्रेन. और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं और वो उसकी हर एक वेराइटी को हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट ओनली. क्लियर? सो दिस वन इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड. और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं अगर आपको बेस नहीं क्लियर है तो, इसलिए आप इन पॉइंट्स को लिखते जाना साथ में. दैट इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग. गॉट इट? So state of rest and state of motion is clear to you because you read this term earlier in 9th class, but it is with respect to frame of reference only. That point is important here. Clear? Now come to the next one. We will discuss different terms like distance. सबसे पहले आती है position. Position and path length. सेकेंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ये सारे टर्म्स आपको पता है इसलिए हम इसे बहुत डिटेल में नहीं. इसके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं इसके, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी,
एंड नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। बस यहीं पर फिनिश हो जाता है आपका इस यूनिट के टर्म्स। इनमें बहुत सारी वेराइटीज़ है, ठीक है, सिंपल नहीं है कि यहाँ पर स्पीड की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्यों फिनिश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काइनेमेटिक्स फिनिश हो जाती है। दिस इज़ अंडर द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक्स। फिज़िक्स की एक, मैकेनिक्स की एक पार्ट है काइनेमेटिक्स, उसके अंडर में आता है ये सारे टर्म्स। अगर इसके आगे हमने फोर्स ला दिया, नेक्स्ट टर्म एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, फोर्स। अगर हमने फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये काइनेमेटिक्स से कन्वर्ट हो जाएगी डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन फिजिक्स वेयर वी डिस्कस द कॉज बिहाइंड द मोशन। ओके, तो कॉज क्या होता है मोशन के पीछे, फोर्स। हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली द मोशन, दैट विच काइंड ऑफ मोशन वी विल फाइंड आउट विद हेल्प ऑफ दीज टर्म्स। मोशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है अभी ये फर्स्ट टर्म, उसके बाद मोशन इन ए प्लेन आएगा। सो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली हमें इतने टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी भी वेराइटीज़ होती है। क्लियर, तो इन सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल टर्म्स। फिजिक्स में मैथमेटिक्स से अटैच्ड है। फिजिक्स में हम टर्म्स को लेते हैं दो वेराइटीज़ में, वन इज़ स्केलर एंड वन इज़ वेक्टर। ये आपको पता ही है, मैंने इसीलिए पहले वो चैप्टर बताया जो मैथमेटिकल था, दैट इज़ वेक्टर एनालिसिस। उसके बाद हम ये चैप्टर डिस्कस करें, उसके बाद हम मोशन इन अ प्लेन के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सो हियर बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेराइटीज़ ऑफ टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स द मोशन। Okay, these are the terms that describes the motion. So what is position? How can we define position? अगर आपको पूछा जाए पोजीशन होती क्या है, तो आप क्या कहोगे, नोट इट डाउन, राइट इट, द पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्लियर, दिस इज पोजीशन। नाउ कम टू नेक्स्ट टर्म, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मीनिंग क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बनाऊंगी, मैंने आपको ओ बता दिया, FOR बता दिया, फॉर एंड OO, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही लेंगे, FOR नहीं लेंगे। ऑब्जेक्ट है जो P पोजीशन पे सिचुएटेड है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर आर, यू नो दैट मोशन मे बी इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, one more dimension is there, then it is called 4-dimensional terms and it comes in the state of motion, x, y, z, t. This is called 4 dimension. X, y, z, 3 dimension. This is 4 dimension. x, y, 2 dimension. x, y की जगह आप y, z भी ले सकते हो और z, x भी ले सकते हो। Now only x, only y, ओनली z इज़ 1 डायमेंशन। तो ये डायमेंशन कहलाती है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस वो डिफरेंट थी, ये डायमेंशन कहलाती है। डायमेंशन इज़ रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 एक्सिस को कंसीडर करते हैं एंड द 4th एक्सिस इज़ द टाइम, जब बॉडी मूव कर रही होगी। क्लियर, तो अभी फ़िलहाल ये बॉडी है जो P पॉइंट पे सिचुएटेड है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या बॉडी दोनों एक ही टर्म है, फिजिक्स में जनरली ऑब्जेक्ट टर्म यूज़ होता है, ठीक है। So one object is situated at point P and it is moving here in this manner. ऐसा मोशन है, कुछ टाइप ऑफ मोशन समझ में भी नहीं आएगा आपको, ग्राफ में यही पूछा जाता है किस टाइप का मोशन है, ठीक है। P से ये Q पे गया, R, S, T, U. This one is the path covered by this object which was initially situated at point P, ठीक है। So what is the path length here? Path length can be described by L only. L is called here path length. The exact path covered by the body is called path length. So L we can write as PQ plus QR plus RS plus ST plus TU. यहाँ पे T term था, ठीक है। So this is called path length. Exactly whatever be the path covered by the object, that is called path length. Whatever be the shape, we don't consider that. So path length is basically defined by the path covered by the object is called path length. Clear?
तो पाथ लेंथ किसी भी शेप का पाथ हो, किसी भी शेप की मोशन हो रहा हो, उसमें हम पाथ लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। जब यहाँ पे मोशन की बात आती है तो हमें बताना पड़ता है यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल मोशन है, या आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है। सो यू विल डिस्क्राइब ऑल दीज टर्म्स अंडर मोशन। तो वो ग्राफ के बेसिस पे पता चलता है, ठीक है। वो भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर पाथ लेंथ होती क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड पाथ लेंथ। नोट इट डाउन, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। आप ऑब्जेक्ट जनरली टर्म्स को यूज़ करो, मैं यहाँ पर दोनों टर्म्स बोल रही हूँ क्योंकि बॉडी भी बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है, बट ऑब्जेक्ट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टर्म हियर। सो दिस वन इज़ नोन एज पाथ लेंथ। क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्टेंस, थर्ड term. I've described first term position, then second term path length. Now third term is the distance. Distance, one point position is here and the body cover the particular distance here in this manner. ये भी हो सकता था यहाँ पर. So here P to Q, Q to R, R to S, S to T, U. ठीक है, डिफरेंट शेप बना दिया, अदरवाइज इस शेप में भी आप डिस्टेंस ले सकते हैं. सो डिस्टेंस इज व्हाट? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. डिस्टेंस इज व्हाट? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. नोट इट डाउन. तो एक्चुअल पाथ यानी पाथ लेंथ और डिस्टेंस ये दोनों ही सेम टर्म्स हो गए, ठीक है. और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो. सो दिस वन इज़ नोन एज डिस्टेंस. नाउ डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विद डायरेक्शन. सो इनिशियल, दिस P इज़ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज़ U. तो डिस्प्लेसमेंट इनके बीच की डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट पाथ जिसे हम क्या देते हैं. सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी. ठीक है. सो डिस्टेंस तो होती है किसके इक्विवेलेंट? पाथ लेंथ के इक्विवेलेंट. पाथ लेंथ को या डिस्टेंस को दोनों सेम थिंग है. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और पाथ लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? अगर इसी ये सेम एग्जाम्पल पे हम लेते हैं तो डिस्टेंस तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू होगी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पी यू. दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. पी यू मीन्स क्या है? यू पोजीशन में से पी पोजीशन को माइनस कर देंगे. सो दिस वन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड इट शुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ. गॉट इट? आप अपने स्कूल से अपने घर जाते हो, सो अपने स्कूल से घर जाने पे आप कई सारे पाथ अडॉप्ट कर सकते हो. वॉट एवर बी द शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट. दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में? ये भी पढ़ चुकी हो, बुक्स में भी दिया हुआ है. मैं आपको जल्दी वो डिफरेंस बता देती हूँ. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ पाथ लेंथ. आफ्टरवर्ड distance definition, it is the actual path covered by the body. Displacement is the shortest path covered by the body. And fourth one is what? Distance is always positive and displacement may be positive, negative as well as zero. How? देखो, अगर सर्कुलर पाथ कवर अप किया तो बॉडी की पोजीशन यहाँ P से स्टार्ट हुई थी और कंप्लीट करते हुए पाथ P पर ही आ गई. तो इनिशियल पॉइंट इज़ P एंड फाइनल पॉइंट इज़ P. बोथ द पॉइंट आर कॉन्साइडिंग विद ईच अदर. तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग्स में द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो फाइनल इनिशियल पॉइंट तो कॉन्साइड कर रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज़ व्हाट? इट विल बी ज़ीरो. सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस is always positive. Okay, so that are the basic four difference between distance and displacement. It is mentioned in every book, you can go through with that. So here that is the distance and displacement terms.
and next term is speed and velocity. So speed is the scalar quantity and velocity is a vector quantity. Same thing like the distance and displacement, but only difference we can give formula for speed or velocity. We cannot give the formula for distance and displacement, it is the initial term, but we can give the formula for speed and velocity. So if we are describing this speed and velocity term, so speed, if it is represented by v, then first of all it is a scalar quantity. स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, एंड स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सो दैट इज़ कॉल्ड स्पीड. इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है. डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड. आपको पता ही है कि डिस्टेंस या लेंथ जो है एक टाइप की फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता. सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड. यूनिट भी आ जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट है. बाकी सीजीएस पर सेकेंड भी, सीजीएस में भी निकाल सकते हो, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड. बाकी फुट पाउंड सेकेंड एफपीएस सिस्टम में भी निकाल सकते हो. सो हियर दिस स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स फॉर्मूला इज दिस वन, डिस्टेंस के बेसिस पर. एंड इफ़ यू आर टेकिंग वेलोसिटी, देन वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देंगे, एंड इट इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी के टर्म में जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकालिया तो आप वेलोसिटी इनिशियली निकाल सकते हो. यूनिट विल बी द सेम, मीटर पर सेकेंड इन एसआई system. So here these are the two terms, and again we can differentiate these two terms on the basis of the distance and displacement difference. Like first of all, speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed is equal to distance over time, velocity is equal to displacement over time. Speed is always positive as the distance is always positive, but velocity can be positive, negative as well as zero. When displacement is zero, velocity is zero. When displacement is negative, velocity is negative, so velocity may be negative. So these are the three difference. Now ये जो इस velocity होती है, इसको हम कई section में divide करते हैं. Like first case is instantaneous velocity. First term, second term average velocity. So these are the two velocity terms, and in the similar manner we can define the speed terms also, instantaneous speed and average speed. So instantaneous means what? At a particular instant. Instant means particular time. तो अगर हमें particular time पे velocity या speed निकालनी है, तो वो निकालने का फॉर्मूला किस तरीके से वेरी करता है. देखो आप बेसिक, उसके लिए बेसिक फार्मूला देखना होगा. स्पीड या वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा डी से लोगे, ठीक है. डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज़ द वेलोसिटी टर्म. इन द सिमिलर मैनर डिस्टेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डिस्टेंस को भी आप डी से डिफाइन कर सकते थे, मैंने यहाँ पर एस से डिफाइन कर दिया है ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले. सो यहाँ पर आप देखो तो डेल्टा आ रहा है, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ पोजीशंस पे पहुँचते हैं. यहाँ पर अगर P एक पोजीशन थी, Q एक पोजीशन, तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा दैट इज़ द डेल्टा S और डेल्टा D. क्लियर. अगर हम इस डिफरेंस को शॉर्ट करते जाएं, यानी ये कितने, यहाँ P से Q तक पहुँचने में बॉडी को डेल्टा T टाइम लगा, अगर हम इस डेल्टा T टाइम को ज़ीरो कर दें तो इसका मीनिंग क्या है? T2 minus T1 is tending to 0. It implies that T2 is tending to T1. ठीक है. यहाँ पे सपोज एट टाइम T इज इक्वल टू 5 मिनट, ये P पॉइंट पर थी बॉडी, और एट टाइम T इज इक्वल टू 7 मिनट पे Q पॉइंट पर पहुँच गई. 2 मिनट लगा P से Q तक पहुँचने में. तो अगर हम इनके बीच के गैप को कम कर दें, यानी डेल्टा T को 0 पे टेंड करें, तो 5 और 7 को हम मिक्स कर देंगे, यानी कि ये जो टाइम है ये कम से कम हो जाएगा. ये मैथमेटिकल स्टेप है. एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 मिनट थे, यहाँ 7 मिनट, यानी 2 मिनट का टाइम लग रहा है. बट हमने क्या किया कि इस डेल्टा टी को 0 की तरफ टेंड करा दिया, यानी अब ये जो 7 मिनट है इट इज़ टेंडिंग टू 5 मिनट, इट इज़ ओवरलैपिंग ऑन द 5 मिनट टाइमिंग. सो इफ़
the two times are overlapping with each other, we are coming at particular instant. 5 और 6 के बीच, 5 और 7 के बीच में 6 मिनट एक ऐसा टाइम है जिसमें 5 और 7 दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, तो उसको हम कह देते हैं इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. सो we can find out mathematically the instantaneous velocity by taking the limit. मैथ्स के बच्चों को पता है कि हम लिमिट कैसे लेते हैं. So v instantaneous can be defined as limit delta t tending to 0, and because we are taking it as the instantaneous velocity, so we will take it as a displacement. So delta d divided by delta t. If the time is tending to 0, we will find exact velocity at particular time during the path. So that particular velocity at particular instant is called instantaneous velocity. Instant means time. So we can define instantaneous velocity that the velocity at particular time is called instantaneous velocity. और वो exactly नहीं पता चलती. जब बॉडी मूविंग स्टेज में है तो आपको एक पाथ लेंथ लेनी ही पड़ती है. उसको आप मैथमेटिकली एक फॉर्म में लाते हो कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो बॉडी इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होगी. अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो उस केस में ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको निकालने के लिए आपको टाइम को ज़ीरो की तरफ टेंड कराना होगा. सो दैट इज़ द main importance of instantaneous velocity, that velocity at particular time, and we can mathematically find out this one. Practically it is not possible, remember this. Next one is average velocity. So average velocity, we average, similar manner we can find out the average speed. V average is equal to total distance divided by total time. So that is called average velocity, total distance over total time. और यहाँ पर क्योंकि velocity लिया हुआ है तो हमें यहाँ पर distance टर्म को रिमूव करके displacement रखना है, total displacement divided by total time. तो अगर पाथ वेरी कर रहे हैं तो आप डिफरेंट पाथ के लिए आप नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे और उस नेट डिस्प्लेसमेंट से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो. इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे ग्राफिकल बेस, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल हैं एज वेल एज थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है. सो यू विल गो थ्रू विद दिस. और इसके फार्मूला भी चेंज होगा बाद में. जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो फार्मूला डिफरेंट होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो फार्मूला डिफरेंट होगा. अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या आ गया उसको भी आप यहाँ पर समझ लेते हैं. मोशन यहाँ पर स्पीड के ही बेसिस पे है. सो यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं. रिमेंबर दिस, यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, दोनों ही टर्म्स हैं यहाँ पर. So this is called uniform motion, that the body covers या object covers equal distance in equal interval of time. Like if a car is moving with continuously with a speed of 60 km per hour or 100 km per hour, so continuously the car maintains its speed at 100 km per hour. So that is called the uniform speed. Clear? So in that way we can say it that the car has been covering equal distance in equal interval of time during the path. So that is called uniform motion. In the similar manner, the same definition is for uniform speed, same definition is for uniform velocity. The only change, you will include the term for velocity, will include the term direction, in the same direction. Okay, so that is the uniform motion. Next is non-uniform motion. Obviously opposite to this definition, when the body covers unequal distance in equal interval of time. The timings are equal, like A to B, B to C, C to D. The timing is 1 minute only for each section, but the body covers first of all 100, second 200, third 500. So by that way the body is covering, the object is covering unequal distance in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform. Similar is the definition for non-uniform speed, and similar is the definition for non-uniform velocity. Only you will include the term in the same direction in velocity case.
Clear? So these are the uniform motion and non-uniform motion definition, and many graphs are there as I told earlier. Last term which is remaining, that is acceleration. Acceleration term is very much important. आप पूरी physics जितनी भी आप +1 से शुरू करके नेक्स्ट आप +2 तक 12th क्लास तक जितनी भी फिज़िक्स पढ़ोगे, विदाउट एक्सेलरेशन no kind of motion, no kind of phenomena you can go through with that. Clear? Because this acceleration, if the body is in the motion, whether it is charged body, whether it is a magnet, whether it is a simple mechanical body, so if you are considering any body or any object, then the kind of motion you have to consider that acceleration terms, and it is directly linked with the dynamics, that is force. By Newton's second law, you know, F is equal to ma. So this term become more important, and again many graphs are there related to this topic, acceleration. So we will discuss these graphs later on. So acceleration is represented by basically small a. Acceleration is defined as rate of change of velocity, that is called acceleration. So rate of change of velocity. Clear? Now the motion can be uniform, motion can be non-uniform. Okay, here in the similar manner, if you are defining this term, acceleration is equal to rate of change of velocity. So unit, first of all, unit may come as meter per second square. Meter per second divided by second is meter per second square, or you can write it as meter second inverse 2. This one is the unit, SI unit for acceleration. Clear? Now acceleration is a vector quantity, very important. It is a vector quantity. Okay, third point, variety of acceleration if you want to discuss. So acceleration may be uniform acceleration, बहुत important है ये part, बहुत आगे तक यूज़ होना है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बेसिकली आपके 12th क्लास तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही मैक्सिमम केस लिए गए हैं. आगे की क्लास में आपका या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी केस लिया जाएगा. सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस acceleration, average acceleration. So these are the four kind of acceleration we can define. So first of all, uniform acceleration means, uniform means होता है constant, यानी throughout the path the acceleration is constant. It doesn't mean कि अगर आप देखो ऐसे velocity, ऐसा नहीं है कि uniform acceleration uniform velocity के लिए ही मिलेगा. uniform velocity अगर है तो acceleration तो ज़ीरो हो जाना है. For uniform velocity acceleration is zero. कैसे? Acceleration is equal to change in velocity divided by time. और यूनिफॉर्म velocity का मीनिंग होता है कि velocity constant है. अगर velocity constant है तो change in velocity यानी v2 माइनस v1 का मीनिंग हुआ कि v2 is equal to v1. velocity तो constant है, यूनिफॉर्म velocity. So that means what? Change in velocity is zero. So change in velocity is zero, that is the acceleration is zero. So uniform acceleration का meaning ये नहीं होता है कि velocity uniform है. velocity तो non uniform होनी चाहिए, यानी velocity change होनी चाहिए. Clear? So we can define the uniform acceleration as a body is said to be in uniform, having uniform acceleration when it occurs, when it changes its velocity equally in equal interval of time. velocity में जो change हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए. जैसे ये पाथ ले लिया A टू B टू C. यहाँ पर इनिशियली A पॉइंट पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, B पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और C पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड. तो चेंज इन वेलोसिटी अगर आप देखोगे, टाइम इंटरवल अगर इन तीनों में सेम है, इन दोनों में 1 मिनट एंड 1 मिनट, ठीक है. अगर सेम है तो क्या होगा कि दैट चेंज इन वेलोसिटी इज 2 हियर, 4 माइनस 2 एंड 6 माइनस 4 इज 2. सो चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, दैट इज द एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम.
delta t. So you will get the acceleration for both the case from A to B and B to C. You will get the same value of acceleration, and this is called uniform acceleration. So uniform acceleration is the acceleration when the body moves with equal change in velocity in equal interval of time in the same direction. Direction should also be same, because if the direction is not same, velocity may vary. Clear? So body must be having the same direction. It must move in the same direction. So this is the case of uniform acceleration. Next is the non-uniform acceleration. When the change in velocity is unequal in equal interval of time, then the acceleration is said to be non-uniform. Non-uniform हो जाएगा. क्लियर है ये? आप निकाल सकते हो यहाँ पर कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टेंस वेलोसिटी में चेंज डिफरेंट होना चाहिए. यहाँ पर 2 है, 4 है, यहाँ पर 8 हो गया. सो दिस डिफरेंस इज 2, दिस डिफरेंस इज 4. अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी. सो दैट इज़ वैल्यू आपको A टू B के लिए एक्सेलरेशन की डिफरेंट मिलेगी और B टू C के लिए डिफरेंट मिलेगी. तो वो कांस्टेंट नहीं रहा. अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म टर्म यूज़ हो रहा है वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म के प्लेस पे उसको वेरिएबल भी यूज़ किया जा सकता है. दिस इज़ वेरिएबल एंड दिस यूनिफॉर्म मीनिंग कॉन्स्टेंट. ओके, so variable acceleration and constant acceleration. Now next one is instantaneous. Instantaneous मैंने आपको बताया था, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, ये a की वैल्यू इतनी है तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट लगा देंगे डेल्टा t टेंडिंग टू 0, जैसा आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में लिया था. So delta v divided by delta t, formula will be same and here time 0 को टेंड कर रहा है. तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, यानी जैसे यहाँ पर A से C तक मूव कर रहा था तो एग्जैक्टली B पोजीशन पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी. और अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस हियर दैट instantaneous acceleration is not the practical term, it is the mathematical approach we are doing in theory. It is not possible practically. Same was the case for इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी. सो वो मैथमेटिकली हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, टाइम को 0 की तरफ टेंड करा के, चेंज इन टाइम को. अदरवाइज अगर बॉडी मूव कर रही है तो आप एग्जैक्ट पोजीशन पे यानी 6 मिनट पे या 7th मिनट पे आप उसकी स्पीड को या उसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हो. ठीक है, वो एक टाइम डिफरेंस आता है. इसके पीछे भी एक लॉ है, वो लॉ है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसलिए यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो एक मैथमेटिकल टर्म है. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट वी कैन गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रैक्टिकली. गॉट इट. मेरी नेक्स्ट क्लास ग्राफ पर ही है क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो ग्राफ के बेसिस पर अब आप लोग ये सारे के सारे टर्म्स और टाइप ऑफ मोशंस को अंडरस्टैंड करोगे. बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ग्राफ होते हैं ना जिनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, वेरी डिफ़िकल्ट. सो इट इज़ बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्लास, understand these graph based terms so that you may get command over it. So thank you for today. Next time I will meet you with graph.